Okay, Ji, I hope so. You people will be in very good health. So today we are going to discuss review exercise, जो कि last review exercise है और नंबर पे अगर देखें तो थर्ड रिव्यू एक्सरसाइज है. इससे कबल हम 2 रिव्यू एक्सरसाइजेस डिस्कस कर चुके हैं और ये लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज है और चैप्टर आपकी ये किताब भी एंड हो जाएगी और ये आखिरी रिव्यू एक्सरसाइज होगी. तो रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे पहले दिए हुए, तो इनको जरा देखते हैं. हेल्थ एंड वेलबीइंग आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी. कमेंट करना है आपने इस पे. व्हाट पॉजिटिव इम्पैक्ट डज ट्रैवलिंग हैव ऑन द माइंड एंड बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल. फर्स्ट वाला इसी लाइफ एंड हेल्दी लाइफस्टाइल से लिया गया है. सेकंड वाला ट्रैवलिंग से ट्रैवल पोएम से लिया गया है. थर्ड वाला टू मदर रिमेंबर्ड से लिया गया है एंड फोर्थ वाला व्हाट डू यू थिंक इज द मेन जी ग्रेगर सामसा वाली स्टोरी जो मेटामॉर्फोसिस थी उससे लिया गया. ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन थिंग दैट यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम. ट्रैवल पोएम से लिया गया. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. तो ये रिव्यू एक्सरसाइज. हेल्थ एंड वेलबीइंग आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी. कमेंट करना है आपने इससे. So health and well-being are indeed essential for individuals and society. When individuals prioritize their physical and mental health, they become more productive, happy, resilient. This in turn benefits society as a whole, leading to a more efficient workforce, reduce healthcare cost and stronger community bonds. So अगर आप well-being आपकी है, ठीक हो गया, health ठीक है आपकी, so then all these things will happen in your life. Second है, what positive impact does traveling have on the mind and body. Traveling has a profoundly positive impact on the mind and body. तो traveling जो है वो बहुत हद तक क्या करती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है हमारी बॉडी पे. इट broadens one's perspective. broadens होता है ओपन अप करना, one's perspective, किसी इंसान की सोच के दायरे को. फॉस्टर्स कल्चर अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करती है एंड प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ. फिजिकल ट्रैवलिंग कैन इंप्रूव मेंटल हेल्थ, रिड्यूस स्ट्रेस एंड बूस्ट इम्यूनिटी. मेंटली इट कैन एनहांस क्रिएटिविटी, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डेवलप न्यू स्किल्स. नेक्स्ट है, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द पोएम टू मदर्स रिमेंबर्ड बाय जॉन स्नो Duncanson. Give your opinion about the relationship shared by mother-daughter in the poem. The poem To Mother Remembered by John Duncanson highlights the complex and profound bond between a mother and daughter. The speaker reflects on the sacrifice and love provided by both biological and adoptive. Adoptive है वो mother जो कि बाद में जिस shape में वो change हो गई थी. Showcasing the depth of their relationship, the poem demonstrates the motherly love transcends biology and that family is not just about blood ties. Okay, next, briefly describe any one thing that you like the most about the poem. You may choose word, phrase or lines भी लेनी है आपने बीच में से. One thing that I like the most about this poem is its vivid mean clear and vast imagery. इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल हुई है. The poet's use of language creates a kaleidoscope of image, kaleidoscopic dirpa that transport the reader to different parts of the world, showcasing diverse landscape, culture and experiences. This line, where are forests, hot as fire, wide as England, tall as spires, stood out to me as they evoke powerful sense of wonder and awe. The comparison of forest to fire and spires emphasize their grandeur आपके पास होता है, अजमत को बोलती है. majesty mean big in size, inviting the reader to imagine and explore these fantastical places. The poem's ability to spark curiosity mean eager to know something and inspire a sense of adventure is truly captivating.
ओके एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, डिड्यूस मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द लेसन्स as understood in the context and write in the column below. Consult dictionary to find the literal meaning of the same words and fill in the relevant columns. Most probably word जो है अपने meaning के मुताबिक ही इस्तेमाल होता है but sometime context थोड़ा सा change होता है. तो impediment जो है something that hinders. Okay, ये last lesson जो अभी हमने discuss किया उसके अंदर discuss हुआ था. A hindrance or obstructions इसका dictionary meaning है. Strenuous होता है require a lot of effort or energy. ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग इसका होगा एनर्जी और स्ट्रेंथ डिमांडिंग. इंसिस्टेंट होता है परसिस्टेंट होना एंड डिमांडिंग इन अ डिटरमिन्ड मैनर, मुसलसल किसी बात को बार बार दोहराते रहना. नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट रिफ्यूजल, यानी कि इनकार ना सुनना, बार बार अगले को तंग करते रहना. डिवोरिंग होता है कंज्यूमिंग और ईटिंग विरेशियसली. विरेशियसली होता है बेचारगी के साथ. ओके यानी कि आखिरी बार जैसे आपको कोई चीज मिली है. ईटिंग हंग्रीली इसका डिक्शनरी मीनिंग हो जाएगा. डिसकर्टसी, कर्टसी होता है पोलाइट एंड डिसकर्टसी होगा रूड और इम्पोलाइट बिहेवियर, रूडनेस और इम्पोलाइटनेस. कारवान और ट्रैवल, अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स डूइंग ट्रेड टुगेदर, ये वहां पे फर्स्ट लेसन के अंदर इस्तेमाल हुआ था. ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स आर व्हीकल जर्निंग टुगेदर, एक साथ काम कर जा रहे हैं. माइंडफुलनेस, being fully present and aware in the moment, जिस जगह पर आप हैं उस जगह के बारे में अवेयर हो और एक्टिव हो. The quality or a state of mind aware of something. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है MCQs. फर्स्ट है चूज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. डाइवर्स का मतलब होता है डाइवर्सिटी से निकला है ये तो वैरायटी. डेजर्टेड का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, लेफ्टेड तो अबंडन इसका मीनिंग होगा. नर्चर्ड का मतलब होता है नशोनुमा करना, पालना, तो प्रोटेक्ट यहाँ पर ज्यादा सूटेबल है. और आफ्टर दैट ओरल कम्युनिकेशन है, ये भी आपकी क्लास एक्टिविटी है, इसको जरा देख लीजिएगा एक नजर. ओके जी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास आइडेंटिफाई प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्बियल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज आवर नेबर, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी हमारे पास. द गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है इन द पिंक ड्रेस. ओके, द sang she sang with a sweet melody, how she sang with a sweet melody, तो sang को मॉडिफाई कर रहा है sweet melody यहाँ पर, तो ये एडवर्बियल फ्रेज होगी. There is a cricket match on Sunday. On Sunday prepositional phrase होगी. The man sitting next to me has a clear and sweet voice. Next to me यहाँ पर adverbial phrase होगी. Sitting next to me, sitting को modify कर रहा है बैठना उसका. So the examination hall is silent and quiet. Silent and quiet यहाँ पर क्या होगी, examination hall की quality बता रहा है तो it will be adjective phrase हो जाएगी. And during the exam prepositional phrase हो जाएगी. Robert is driving very carefully, adjective phrase हो जाएगी. Okay, and after that change the narration of the following sentences. Rabi said to his friend, तो इन सेंटेंस की नरेशन आपने चेंज करनी है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट वैसे 9th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने डाले हुए हैं, तो इट मींस दे आर सपोज टू चेंज द पेपर पैटर्न और विल डू समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे देख लें जरा. Rabi said to his friend, where did you keep my book? सो सिंपल आपने इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करके क्या करना है, वेयर को लगा देना है और ये डिड जो है ये हैड में बदल जाएगा. यू हैड कीप थर्ड फॉर्म आ जाएगी. तो इसको देखें, तो उसके बाद हमारे पास है द लिटिल गर्ल सेड आई हैव अ पिंक फ्रॉक. तो हम इसको पहले वाले को हम लिखेंगे राबी सेड, राबी टोल्ड टू हिज आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर he had kept her book, where he had kept her book हो जाएगा. The little girl said I have a pink frock. तो सिंपल यहाँ पे that लगाएंगे आप, और have है तो had में बदल जाएगा. The little girl said that she had a pink frock. Tim asked why I was there. ये already उसमें है
इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक हो गया, सॉरी, तो इसको डायरेक्ट में करना है तो सिंपल, टिम सेड व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू हियर, सिंपल. He said I am feeling happy, so he said that he was feeling happy, and he said that he could not do it. Then ये already indirect में है तो direct में करना है इसको. So Annie said inverted comma she cannot do it now. Okay, then now में बदल जाएगा. Henry said does he like it? Henry said if he liked it. Okay, so इनकी नरेशन मैंने चेंज भी की हुई है, जरा वो एक नजर भी मार लें ताकि थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. So सबसे पहला, Rabi asked his friend where he had kept his book. Okay, second, the little girl said that she had a pink frock. Tim asked me why I was there. ठीक है, एक तो ये पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अगर इसको दोबारा से इनडायरेक्ट में करेंगे, Tim said why are you there here. Okay, here जो है there में बदल जाएगा. He said that he was feeling happy. So Annie said that she could not do it at any time. तो ये तो वैसे ही का वैसा ही है, तो इसको इनडायरेक्ट में करना है हमने. Annie said I can do it at, sorry, डायरेक्ट में करना है, I can do it at this time. ठीक हो गया. Henry asked if he liked it, and after that we will discuss the next thing. Read the sentences given below and rectify the mistake keeping in mind the tenses and subject verb agreement. ठीक हो गया, टेंसेस को माइंड में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को माइंड में रखना है. साद एंड हिज फैमिली लिव्स इन लाहौर लिखा हुआ था, तो मैंने उसको एस काट कर लिव कर दिया, क्योंकि साद एंड फैमिली प्लूरल हो जाएंगे तो वहां पे लिव्स नहीं लग सकता. ठीक हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे अप्लाई हो गया. वन ऑफ द पैसेंजर्स इंजर्ड इन द एक्सीडेंट येस्टरडे, यहाँ पे येस्टरडे मेंशन है तो यहाँ पे इज नहीं आ सकता, वाज आएगा. ठीक हो गया. द सन सेट स्लोली बिहाइंड द माउंटेन्स, तो सेट नहीं होगा, सेट्स होगा, एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है सन. नेक्स्ट वीक दे विल हैव कंप्लीटेड लिखा हुआ था, तो मैंने उसको विल हैव बीन कंप्लीटिंग दिस टास्क फॉर 2 years कर दिया. ओके, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन लगना था. द डॉग बार्क्स, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो यहाँ पे द डॉग बार्क्स loudly whenever any visitor arrive. After that a writing composition argumentative ऐसे जो कि आपके सिलेबस में अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो कह नहीं सकते पेपर पैटर्न चेंज हो जाए. तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कैंटैब बुक 9th क्लास. ओके, तो उसका फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे and inshallah we will complete that book as soon as possible. तो काइंडली लिंक शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें चैनल को, सब्सक्राइब करें. ओके, जिसकी वजह से उनको फायदा हो सके. अल्लाह हाफिज.